بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب تعالی سبحانہ فی القرآن الحکیم الفرقان المجید ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعد حمد و ثنا رب کعبہ کی اور درود صلوات آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، ان کے آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، اصحابہ اکرام اور جو تبع تابعین و اجمعین جو ہے وہ ہیں، ان سب پہ نظر عقیدت پیش کرتا ہوں۔ رب کعبہ سے دعا ہے رب قبول فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں۔ کچھ لوگ دنیاوی عزت اور ذلت کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جو آخرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ عزت فرمائے، عطا کرے، ذلت نہ دے۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوئے، ہم نے بہت پروگرام کیے۔ میں بحیثیت ایک آپ ایسے سوچیں کہ جو ایک نارمل سا ایک ادنا سا بندہ ہوں، سیاسی کارکن بھی رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے گفتگو کی، میں خاموش تھا، ہم خاموش رہے۔ ہم نے ہمیشہ کشمیر کی شناخت کی بات کی، اپنے تشخص کی بات کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ یہ بات کرے کہ میں کشمیری ہوں، میرا تشخص ہے، میرا ایک جو عزت و مقام ہے وہ میری شناخت سے ہے، اور دوسرا اس کی نفی کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ الجھا جائے۔ وہ جانے، اور اس کا کام، ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے پوری کرنی ہے۔ ہمیں جو حکم ملا ہے میرے رب کی طرف سے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت اور احترام کے لیے کام کرو، تو ہم وہ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ میں کہیں بھی نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں۔ اب نہیں کوئی مانتا تو ہم اس کو زبردستی نہیں منوا سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے اس نے جو 26 جو سیٹیں لی تھی، 9 سیٹیں تھی مہاجرین اور ویلی والی، اور 16 سیٹیں تھیں آزاد کشمیر کے اندر سے۔ تو ان سیٹوں کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ جیت گئے، بس بات تو جیتنے کی تھی، جیت گئے۔ اس کے بعد جو پارلیمانی روایات ہوتی ہیں، جو پارلیمانی اصول ہوتے ہیں، وہ جو جیتی ہوئی جماعت ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائے، اور اجلاس بلانے کے بعد وہ اپنا قائد ایوان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنی باہمی مشاورت سے ان کو نامزد کیا جائے۔ لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد معاملہ الٹ ہو گیا۔ نہ ہی جو ہمارے پارلیمانی پارٹی کے صدر تھے، جو جیتی ہوئی پارٹی کے، نہ ہی تو ان کو کوئی حق دیا گیا، بلکہ ایک تماشا بنایا گیا کہ مختلف لوگوں کو بلا کر وزیر اعظم پاکستان ایک انٹرویو لیتے رہے کہ ہم وزیر اعظم کس کو بنائیں۔ وزیر اعظم نہ ہوا، بلکہ ایک 17 یا 16 گریڈ کا آفیسر بنا دیا آپ نے، اور ہم اس چیز کی مذمت ہم نے کی ہے اور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جس نے آزاد کشمیر کے الیکشن سے پہلے
अरबों और करोड़ों रुपए बांटे, उसमें मुक्तदरा के लोगों को दिए, बड़े बड़े हाई पोजीशन वाले को लोगों को पैसे दे के अपनी वजारत उज़्मा का रास्ता ढूंढता रहा। तो फिर क्या हुआ कि वो एक खबर उठी, तब्दील किया गया, लेकिन जो नौमौलूद आया उसने भी आके उसी प्रोग्रेस में, उसी प्रोग्रेस को मजीद आगे किया, उसी प्रोसेस को बढ़ाया, और आखिर 25 को इलेक्शन हो गए। खैर वो बात भी छोड़ दें। उसके बाद पार्लिमानी तश्कील हुआ था जो कमीशन, उसमें भी उन्होंने पार्टी सदर से कोई मुशावरत ना की, बल्कि आज जो वज़ीर आज़म नामज़द हुए हैं सदात मिजाजी क्यूम नियाज़ साहब, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, वो भी कश्मीरी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कश्मीर है या कोई लाहौर के किसी पुरानी इनारकली के अंदर कोई किताबों कापियों की दुकान, जिसमें आपने एक मगज या बंदा बैठा देना है कि ना ही तो किसी ने किताब खरीदनी है, ना इंटरनेट का दौर है, जरूरत ही कोई नहीं, या आप ये समझे कोई नान कुलचे की दुकान है, या कोई ट्रांसपोर्ट का बसों का अड्डा है। भाई ये मसला है कश्मीर के बारे में, एक आप लोग खुद ही कहते हैं बेस कैंप है। यहाँ पे एक वजीर आजम कद काठ वाला बंदा होना चाहिए। आपने 44 लाख लोगों को मखमसे में रखा, एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बना दिया। मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस मनसब के अहल नहीं। मेरी सियासत को छोड़े, मेरी सियासत जो है वो खुद मुख्तार रियासत की है। मेरा नजरिया ये है कि कश्मीर एक रियासत खुद मुख्तार होनी चाहिए। कश्मीर की जो इक़्तिदार के फैसले हैं वो कश्मीरी अवाम ने करने हैं। कश्मीर के जो फैसले हैं वो कश्मीर की अवाम ने अपने वोट के साथ करने हैं। अब जब तक हम मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत नहीं होते, तो जो इस पार कश्मीर है, यहाँ के फैसले मुजफ्फराबाद में होने चाहिए, इस्लामाबाद में नहीं। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक नहायत ही मैं समझता हूँ कि एक गलत, इससे मैं लफ्ज़ मेरे पास जो है वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो मैं इखलाक से आ रही बातें नहीं करना चाहता, इंतहाई घटिया हरकत हुई है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को नजरअंदाज करके, जिन्होंने अपनी मेहनत से पीटीआई को ये सीटें दिलवाई। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का कोई नाम लेवा नहीं था। आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई के कोई जानता नहीं था, मुतारफ ही नहीं थी। 2016 में 2 सीटें लेके, आज 2021 में 16 सीटें लेके जाने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ पार्टी के लिए दिन रात काम किया। आज वो लोग क्या सोचते होंगे? मैं गो के पीटीआई का सियासी तौर पे मेरा कोई उसके साथ लेन देन नहीं है। मैंने पार्टी छोड़ी थी, मैं सीनियर नायब सदर था यूरोप का, वो इसलिए छोड़ी थी कि मुझे उस वक्त भी देख रहा था मैं कि ये लोग इंसाफ नहीं कर रहे। तो आज मैं इस चीज की अपने उन दोस्तों को, उन साथियों को जिन्होंने हमारे साथ रह के सियासी जद्दोजहद की है, हम उनके बारे में उनको ये अपील करते हैं कि आएं और एक रियासती खुद मुख्तारी की हमायत वाली जमात, एक मुकम्मल रियासत वाली का तशख़्ख़ुस कायम करने का इरादा करके आने वाली जमात, एक वो जमात जो कश्मीर के नाम को जिंदा रखना चाहती है, जो 1947 से पहले वाली रियासत की बहाली चाहती है, जो कश्मीर के अंदर से दोनों मुमालिक की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौजें हैं, उनको बाहर देखना चाहती है, और जो जमात उस कश्मीर को, कश्मीर के वसाइल को, कश्मीर की मादनियात को, कश्मीरी कौम को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहती है। आए उस जमात में शामिल हो जाएं, आए उस जमात का साथ दें, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अल्लाह ताला की कसम से, वो जमात आपको इज़्ज़त व एहतराम भी देगी। वो जमात आपको आपका जायज़ मकाम मिलेगा, कारकुन को इज्जत देंगे। हम कारकुन और सदर
के दरमियान कोई फ़र्क नहीं देखेंगे और आपको वो मुकाम मिलेगा। आए जमात की तरफ। कौन सी जमात? मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। उसका जो सदर हैं वो हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी। वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में होते हैं। लोगों ने उनके बारे में बड़ी घड़ियां गढ़ी हैं। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि उस शख्स ने 5 अगस्त 2019 के बारे में सबसे पहले हिंदुस्तान की मजम्मत की। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने प्रोटेस्ट किए, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी और यूनाइटेड नेशन के बाहर भी। लेकिन मैं तो अभी उनका कुछ दिनों से हिस्सा बना हूं। मैं उससे पहले मेरा कोई उनके साथ सियासी भी से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ था और मैं हूं मीरपुर के अंदर उनका दोस्त हूं, उनका साथी हूं, उनकी हमायत करूंगा। लेकिन मैं उनको भी ये कहता हूं कि जनाब आपने देख लिया, आप आए कश्मीर की रियासती जमातों की तरफ। आप बड़े कद काठ के बंदे हैं। आपके बगैर कश्मीर में कोई भी लीडर इस पाए का नहीं है कि मसला कश्मीर को वो दुनिया में उजागर कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेकदर लोग होते हैं जो आला ज़र्फ़ों की कदर नहीं करते। जो लोग वो कहते हैं ना, एक कम ज़र्फ़ के एहसान तले दब जाना इससे बेहतर है कि कशकोल को उठा लेना। वो कहते हैं कम ज़र्फ़ मुनाफिक थे सो अफसोस नहीं है जो लोग मेरे हल्का अहबाब से निकले। एक और आखिरी बात बता दूं कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा को वक़्त का क्या नाम दिया जाए। कहते हैं मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। फिर आज आखिरी बात फिर कहता हूँ, अब मुझे इतना भी लाचार ना समझे मेरे लोग, अब इतना भी मुझे लाचार ना समझे मेरे लोग, सुलहनामा को मेरी हार ना समझें मेरे लोग। और फिर आखिरी वक़्त, घड़ी वक़्त का पता बता देती है और वक़्त लोगों की औकात का। औकात से ज्यादा मिली हुई इज्जत और मोहब्बत कम ज़र्फ़ को रास नहीं आती। कम ज़र्फ़ लोग ज्यादा तौर पर बातें खूबसूरत करते हैं और ख्याली पुलाव भी पका लेते हैं, लेकिन वो बात वहीं पे रहती है। मियाँ साहब ने, मेरा ख्याल एक शेर है, नीचा दी अशनाई को लूं फैज कद किसे पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। और 2019 में मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सब मेरे घर तशरीफ लाए थे मीरपुर में। तो मैंने उस वक्त फरमाया अर्ज की थी कि जनाब दुआ करें कि हम नीचों में से ना हों, हम नीचों में से ना हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सियासी उनकी जमात से शायद तल्लक ना हो सके अब, लेकिन उनकी ज़ात से तल्लक है और तल्लक रहेगा। और उस तल्लक की बिना पे कहता हूँ कि हम उनके साथ इस ज्यादती के खिलाफ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्का अहबाब है, और जो हमारा हल्का अहबाब है उसमें इंशाल्लाह कम ज़र्फ़ कोई नहीं, आला ज़र्फ़ लोग रहते हैं। और हम उनको फिर कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपके लिए मसला कश्मीर के लिए हम आपको दावत देते हैं, आएँ और इंशाल्लाह आप एक रियासती तशख़्ख़ुस को कायम करने के लिए एक रियासती जमात के साथ वाबस्तगी करें। आपको आपकी इज्जत और मकाम का जो एहतराम है वो उसी तरह मिलेगा, इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जिनके अंदर कश्मीरियत के लिए कुछ है, आए कश्मीरियत के लिए काम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिर रब्बिल आलमीन।